Good morning, class. Good morning, Kushal. Good morning, sir. Hello. Good morning, everybody. Good morning, class. Today, Good morning, sir. good morning, all of you. Today, we are going to start the residential status. Uh, my screen is visible to all. Hello. No, sir. Just a second. बेटा हेडिंग डालो रेसिडेंशियल स्टेटस. बेटा हेडिंग डालो रेसिडेंशियल स्टेटस and its effects on tax incidence. It is a very important topic for your exam point of view also. So residential status. Any idea? Anybody else in my class who is having any idea? So residential status is used for computation of taxation.
basically it tells us to which country, according to which country's taxation laws, the tax should be computed for an individual. So, what is relevance of residential status? कहता है कि टैक्स liability of an SSC depend upon his residential status. किस पर डिपेंड करता है? उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है. ठीक है. Okay, guys. So the tax liability of an SSC depend upon his residential status. Suppose an individual generates some income outside India. He is an Indian citizen. To find out whether his foreign income is taxable in India, one has to determine his residential status. क्या पता करना पड़ेगा? We have to determine his residential status. Suppose एक बंदा है जो बाहर अमेरिका में कमाता है, सपोज कीजिए, बट इंडिया का सिटीजन है. Then what we have to check? We have to check the residential status of that particular person, right? Residential status under the provision of Income Tax Act. Likewise, whether an income earned by a foreign national in India or outside India is taxable in India depend on the residential status of the individual rather than on his citizenship. Citizenship के basis पे हम tax liability of an SSC का check नहीं करते. We have to identify, we have to determine the residential status of that particular individual or person. Therefore, the determination of a residential status of a person is very significant in order to find out his tax liability, right? It is clear. हम citizenship के basis पे नहीं करेंगे, हम किसके basis पे करेंगे? बोलो. On the basis residential status, right? ठीक है. इसके बाद relationship between the residential status and the tax liability in brief. There are two types of taxpayers, resident in India and non-resident in India. ठीक है. Indian income is taxable in India whether the person earning income is resident or non-resident. Conversely, foreign income of a person is taxable in India only if such person is resident in India. Foreign income of a non-resident is not taxable in India. आगे कहता है कि what one must know for deciding the residential status. अभी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. The following norms has to be keep in mind while deciding the residential status of an SSC. Different taxable entities. All taxable entities are divided in the following categories for the purpose of determining the residential status: an individual, a Hindu undivided family, a firm or an association of person, a joint stock company, and every other person.
right? Different residential status, and SSC is either a resident in India or non-resident in India. However, a resident individual or Hindu undivided family has to be resident and ordinary resident, be resident but not ordinary resident. Therefore, an individual and Hindu undivided family can either be क्या होगा बेटा resident and ordinary resident in India, और या फिर resident but not ordinary resident, या फिर non resident, right? Yes, sir. Now I'm going to cover the residential status individual. We are talking about the individual. So what are the basic condition? What are the basic condition? ये please note down कर लें. देखो बेटा, determination of residential status of an individual, section 6 subsection 1. Basic condition है. Basic first condition क्या है? कहता है individual shall be resident in India if he satisfies any one को underline कर लीजिए please. If he satisfy any one of the following two condition, इन दो condition में से अगर वो इंडिविजुअल एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो क्या बनेगा, वो रेसिडेंट बन जाएगा. ठीक है बेटा, क्या रेसिडेंट बन जाएगा. पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज इफ द इंडिविजुअल, कहता है इफ द इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. जो भी मेरा प्रीवियस ईयर होगा, अभी करंटली क्या चल रहा है मेरा, वो मेरी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है बेटा, 1st April 2020 to 31st March 2021. या मतलब 20-21. ठीक है. और असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22. ठीक है. 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021. ठीक है. और असेसमेंट ईयर क्या होगा बेटा मेरा, 1st April 2021 to 31st March 2022. राइट. सो जो मेरा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में वो इंडिविजुअल कम से कम इंडिया के अंदर कितने दिन रहा हो, 182 दिन या फिर उससे ज्यादा. पहली कंडीशन समझ में आ गई? Yes, sir. इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days और मोर. 60 days कम से कम 60 दिन या फिर 60 से ज्यादा ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. जो भी मेरा प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में वो बंदा कम से कम 60 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा हो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. एंड का मतलब होता है प्लस 365 days और मोर ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding the previous year. Are you getting my point? What does it mean? जो दो बेसिक कंडीशन मैंने बताई है आपको, इंडिविजुअल और इसके लिए इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, उसमें बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन मैंने बताई अभी आपको. I think I have to. ठीक है बेटा. बेसिक कंडीशन condition 1 and condition 2. Condition 1 and condition 2.
फर्स्ट कंडीशन है बेसिक में, फर्स्ट कंडीशन कहता है Sir, resided in India for a minimum of 182 he days is in a year, he is previous in year. India in the previous year. Previous year. For a period of 182 days. इसको 182 days और मोर. ठीक है, प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना होना चाहिए, 182 दिन या फिर उससे ज्यादा. यहाँ पे है और का ऑप्शन, या तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करें या फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करें. अगर ये इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, देन द इंडिविजुअल बिकम द रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है बेटा, क्या बनेगा, रेसिडेंट इन इंडिया. सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज. कितना, फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days. 60 डेज. कहाँ पे, 60 डेज और मोर. कहाँ पे बेटा, ड्यूरिंग द previous year. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. राइट. एंड यहाँ पे एंड क्या ब्रैकेट में लिख रहा हूँ प्लस, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन या उससे ज्यादा, एंड 365 डेज, 365 दिन, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the previous year. ठीक है, प्रीवियस ईयर मेरा भी क्या चल रहा है, 2021. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस कंडीशंस everybody. Done. Yes, sir. देखिए, बेसिक कंडीशन नोट कर लिया आपने बेटा. बेसिक कंडीशन थी, इफ द इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. दूसरी कंडीशन थी, इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. इसको और उसके हिसाब से समझते हैं. सपोज करो बेटा कि लोग previous year, as you know, 1st April 2020 और कब खत्म हो रहा है, 31/3/2021. असेसमेंट ईयर 1/4/2021 से लेके 31/3/2022.
ये है मेरा असेसमेंट है, कौन सा वाला बेटा, 2021-22, राइट। ये है मेरा प्रीवियस ईयर, 20-21। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 19 और 20। यहाँ पे क्या होगा, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15 और 16, 14, 15, 13, 14। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर और चल रहे हैं बेटा। तो जो मेरा असेसमेंट ईयर है उसका प्रीवियस ईयर ये है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, यहाँ पे इस वाले साल में प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने दिन होना चाहिए बेटा, 182 डेज, कम से कम 182 डेज और मोर इंडिया के अंदर स्टे किया हो। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो मेरा रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, रेसिडेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा, दूसरी कंडीशन में क्या कह वो तक दूसरी कंडीशन ये है कि जो मेरा प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहा हो, 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर, 60 दिन या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, और जो मेरे प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 4 सालों में मिला के 365 दिन रहा हो, यानी कि यहाँ से लेके कहाँ तक आएगा, 1, 2, 3, 4। इमीडिएटली कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग, पिछले प्रीवियस ईयर के जस्ट पिछले 4 सालों में, यानी कि यहाँ से लेके ये पीरियड आएगा, यहाँ से लेके 4 साल यहाँ पे हो रहे हैं ना, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कम से कम कितने दिन रहा हो बेटा, वो 365 दिन, 365 डेज और मोर। ठीक है, ये या तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑप्शन है बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक पिछले 4 सालों में 365 दिन। ठीक है, और ये प्लस में है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, देयर आर 2 बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया के अंदर स्टे होना चाहिए इंडिविजुअल, तो देन ही विल बी कॉल्ड रेसिडेंट इन इंडिया। कंडीशन नंबर 2, प्रीवियस ईयर में 60 दिन या फिर उससे ज्यादा एंड प्लस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में 365 दिन और या फिर उससे ज्यादा इंडिया के अंदर स्टे किया है, तो ही विल बी कॉल्ड रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मेट if you feel comfortable, so that in future you can revise. ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. अभिनव, कुशल, बोरा, खुशी, अमन, अभिलाषा, यथार्थ, रिधि, Yes, sir. अमन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अमन Yes, क्लियर? नोट कर लिया आपने अमन? I am noting. फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई इन दोनों में से एक भी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोलेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है,
Shall we move further? Yes. Yes, sir. ठीक है, हमने इस बेटा अमन आप बताओ कि व्हाट वी हैव स्टडीड, बेसिक कंडीशन क्या है? अभिनव आप बताइए। विधि तो या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और या फिर सेकंड कंडीशन जो हो सकती है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years preceding the immediately previous year. विधि यू टेल। So basic condition. हम्म A person has stayed in India for a period of 182 days or more in relevant previous year, or if he has stayed in India for a period of 60 days and more during the relevant previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding previous year. खुशी आप बताइए। सर पहली कंडीशन है 182 डेज और हम्म। मोर से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, और दूसरी कंडीशन है कि वो 60 डेज और मोर रहे प्रीवियस ईयर में, और जो पहले के 4 साल हैं प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल उसमें 365 डेज और मोर रहे। Then he will be called, व्हाट सर? तो वो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? सर रेसिडेंट अगर वो रह जाएगा तो। तो उसमें से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए या एक भी सेटिस्फाई होगी तो काम चल जाएगा? सर एक भी हो जाएगी तो काम चल जाएगा। हाँ, या दोनों हो जाए तो बेसिक कंडीशन तो वेल एंड गुड, या फिर उसमें से एक हो जाए। राइट। यस सर। अमन, आर्यन, आयुष, अभिलाष शाह। Yes, sir. यस सर। Now we are going to discuss the additional condition, right? Additional condition. important line ये भी important है, प्लीज इसे नोट कर लेना, नोट डाउन इन अ कॉपी। The day on which he enter in India as well as the day on which he leaves India shall be taken into account as the stay at the individual in India. क्या मतलब हुआ? सपोज करो टुडे इज 25 अगस्त, ठीक है, मिस्टर सचिन 12:59 पे आ जाते हैं इंडिया पे और उसके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है, तो क्या वो दिन काउंट होगा या नहीं होगा? सर होगा। Sir, होगा। होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट डे नहीं लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is the very very important point. The day on which he enters India as well as the day on which he leaves India shall be taken into account as the stay at the individual in India. Clear है? Clear है sir? Yes, sir. ठीक है। There are some exceptions also. For the following person, the person condition mentioned above only shall apply to determine his residential status. इस केसेस में हम सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या व्हाट वी हैव टू चेक, वी विल चेक द फर्स्ट कंडीशन, राइट। फर्स्ट कंडीशन क्या है इस केसेस में? पहला पॉइंट है बेटा, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, राइट। तो in that case we will check only condition number 1, not condition number 2. ठीक है। Second is your Indian citizen being a crew member of an Indian ship living in India, right? Third, individual Indian citizen or a person of Indian origin visiting India. These are the 3 points in at which we will check only condition number 1, right? अब now we will check the additional condition. Okay, we will check the additional condition, guys. We will check additional condition.
हमने बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल individual and Hindu undivided family, right? अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, क्या बेसिक कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है, एंड कंडीशन नंबर 2, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दें एक भी, तो क्या बनेगा वो बन जाएगा रेसिडेंट। क्या बनेगा बेटा? रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया तो बन गए साहब, मिस्टर सचिन मान लो। अब हम क्या चेक करेंगे आगे? एडिशनल 2 कंडीशन। क्या चेक करेंगे? एडिशनल 2 कंडीशन। क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन है 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे समझा रहा हूँ उसको नोट कर लेना। एडिशनल कंडीशन, रेसिडेंट इन इंडिया तो बन गए, रेसिडेंट इन इंडिया के बाद हम चेक करेंगे एडिशनल 2 कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कंडीशन है 1 एंड कंडीशन 2। यहाँ पे है एंड का मतलब है प्लस, ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। एडिशनल 2 कंडीशन है बेटा, मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा उसको। एडिशनल 2 कंडीशन है, एडिशनल 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मेरा क्या बन जाएगा? वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बनेगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है? नाउ आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ही विल बी कॉल्ड द रेसिडेंट इन इंडिया। एडिशनल कंडीशन मेरी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब जाके वो क्या कहलाएगा बेटा? मेरा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन में से एक सेटिस्फाई हुई, ये नहीं हो पाई, तो इन दैट केस ही विल बी कॉल्ड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा मेरा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर। एडिशनल कंडीशन क्या क्या है बेटा? पहले एडिशनल कंडीशन है फर्स्ट, दिस लाइन इज वेयर दिस एडिशनल कंडीशन इज very very important. He has been in India in at least 2 years out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। यानी कि जो मेरा प्रीवियस ईयर है उसके पिछले 10 सालों में कम से कम वो 2 बार रेसिडेंट बना हो, यानी कि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तो वो रेसिडेंट बनेगा। आया नहीं? Yes, sir. लाइन एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड मिस किया आपने तो यू विल बी इन ट्रबल। ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड वेरी वेरी केयरफुली। कहता है ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहां से लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार क्या बने? रेसिडेंट इन इंडिया बने। पहली कंडीशन एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन की सेकंड कंडीशन है ही हैज बीन इन इंडिया के अंदर रहे 730 दिन और मोर, 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. What does that mean? जो मेरा प्रीवियस ईयर है उसके पिछले जस्ट 7 सालों में वो कम से कम इंडिया के अंदर 730 दिन रहा हो या फिर उससे ज्यादा। क्लियर है सर? Yes, sir. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन नंबर 2,
he has been in India for 730 days, 730 दिन और मोर, कम से कम 730 दिन या फिर उससे ज्यादा, during 7 years immediately preceding the relevant previous year, यानी कि जो मेरे प्रीवियस ईयर है उसके पिछले पिछले, बात समझ में आ रही? प्रीसीडिंग मतलब पिछले की तरफ जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में जो उन्होंने 700 दिन इंडिया के अंदर स्टे किया होगा, तो वो कंडीशन, एडिशनल कंडीशन की कंडीशन नंबर 2 फुलफिल कर देगा। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी वो क्या बनेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है, कंपलसरी दोनों, इसमें ऑप्शन नहीं है। मैंने इसमें प्लस का साइन लगाया था, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो तभी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी, अगर इस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? क्लियर है सर? Yes, sir. Yes, sir. सपोज करो बेसिक कंडीशन को एडिशनल कंडीशंस ऐसा समझते हैं। ये है हमारा बेटा असेसमेंट है 21-22, राइट? प्रीवियस ईयर 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11। ठीक है सर? पहले एडिशनल कंडीशन कितना तक क्या लिखा था बेटा? क्या लिखा था? It is mentioned he has been resident in India at least two year, 2 बार, at least 2 years out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। relevant previous year क्या था बेटा? ये है मेरा प्रीवियस है, ये मेरा रिवन, ये है मेरा प्रीवियस है। इसके यहाँ से लेके 10 सालों में कम से कम 2 out of 10, ये वाली बात बोल रहा है ना? आप देखो, पढ़ो ना बेटा, आप पढ़ ही नहीं रहे। He has been resident in India at least 2 years out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। ठीक है, आसान है। 10 साल जाएंगे पिछले। कंडीशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या रहे? प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम कितने दिन होना चाहिए? बोलो। 730 730 days or more। Very good, people are revising। 730 days or more। ठीक है, तो कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो तभी मेरा वो क्या बनेगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यानी ऑर्डिनरी बनने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। बस कसम खा लो, ये कसम मत तोड़ना, कसम तोड़ी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हम कभी मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट आल्सो, कि पेशेंट्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बस।
ठीक है सर, कर लिया नोट आपने? सर अगर ये इसमें से मैंने प्लस का साइन लगाया यहाँ पे, अगर इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की और ये नहीं कर पाया तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बनेगा फिर वो? मान लो कंडीशन 1 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया और कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो मेरा वो क्या बन जाएगा बेटा? रेजिडेंट। रेसिडेंट तो पहले ही बन गया है, रेसिडेंट बट Not- नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरली। ठीक है सर, ऑर्डिनरी। ठीक है सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसको बड़ा बड़ा सर्किल कर लेना प्लस कॉपी। ठीक है सर, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? एडिशन Yes, कंडीशन, sir. एडिशन कंडीशन से समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. गुप्ता, अभिनव, यथार्थ, खुशी, शुभम, Yes, sir. क्या है आप बताओ? एडिशनल कंडीशन समझाइए। Sir, he has been a resident in India at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the previous year, relevant previous year, or second additional condition is he has been in India for a period of 730 days or more during the 7 years immediately preceding the relevant previous year. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए या एक? दोनों। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो क्या बनेगा? इंडिविजुअल, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। वेरी गुड। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या बनेगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अमन आप बताएंगे? Yes, sir. खुशी? यस सर। सर अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर से वो 10 इयर्स में कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट बन जाए तो वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर से अगर वो 730 डेज और मोर रह जाए, आई मीन स्टे कर जाए फॉर 7 इयर्स, 7 इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए दोनों? सर दोनों। ठीक, गुड। ठीक है अभिलाषा, गुड। खुशी, गुड। ओके शुभम? नाउ न्यूमेरिकल पार्ट करा देता हूँ, मिनट मिनट। ये नोट करो, एग्जाम्पल है मिस्टर लाल मोहन गैंगुली is an Indian citizen. He went to UK for employment purpose on 1st August 2020 and came to India on 1st January 2021. He has never been out of India in the past. Determined his residential status for the assessment year 21-22. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रीड वंस अगेन। मिस्टर लाल मोहन जो गैंगुली है, ही इज एन इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन है, यूके गए हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। अब कब गए हैं बेटा? ये 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 को गए एंड केम टू इंडिया, और इंडिया में आए ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक है सर। He has never been out of India in the past. Determine his residential status for the assessment year 21-22। तो यहाँ पे बेटा मंथ्स लिखो जो मेरा प्रीवियस ईयर है, मेरा जो बेटा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर लिखो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021.
2021। अब बेटा ये बताओ वो कब गया है इंडिया से? देखो ध्यान से देखो, 1st August 2020। 1 अगस्त 2020 को गया। तो उसके जो पिछले महीने हैं, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, वो तो इंडिया में था ना? यस सर। यस और नो? यस, इंडिया में था। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल बना लेंगे, मंथ्स और नंबर ऑफ डेज। अप्रैल में इंडिया में था, मई में इंडिया में था, जून में इंडिया में था, जुलाई में भी इंडिया था, अगस्त एक 1 अगस्त को इंडिया छोड़ा। तो अगस्त का एक दिन तो लेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर थे, ठीक है सर? यस। अब सितंबर में इंडिया में नहीं थे, अक्टूबर में इंडिया में नहीं थे, नवंबर में इंडिया में नहीं थे, दिसंबर में इंडिया में नहीं थे, और जैन में 1 जनवरी को इंडिया आए। 1 जनवरी 2021 को इंडिया में आए, तो जनवरी के पूरे 31 दिन लिए जाएंगे। ये सुन लो, यस। जब 1 जनवरी को बंदा आया, तो जनवरी के पूरे 31 दिन रहा, हाँ या नहीं रहा? हाँ या नहीं? Yes, यस सर। Yes, sir. फरवरी में 28 डेज रहा, मार्च में भी रहा, ठीक है? तो ये मेरा इस तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर की टेबल बन गई। अब प्रीवियस ईयर की टेबल बन गई, अब इसमें नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का एक दिन, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपके हो गए 213 दिन। 213 दिन हुए नहीं हुए? यस और नो? Yes. यस सर। अब 213 दिन है। बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम इंडिया में रहा हो, कम से कम 182 डेज, 182 दिन। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तो ये तो रेसिडेंट बन गए, हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, during the previous year, 2021, Mr. Ganguly actually stayed in India for 213 दिन, 213 days. Therefore, he fulfilled the basic condition of section 6 of section 1 further. ठीक है? तो ये क्या बन गया? Therefore, he become the resident in India. अब बात चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, या ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो बन गए क्योंकि इन्होंने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, हाँ या नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes. He has satisfied the basic condition because 213 दिन रहे, और कम से कम कितने दिन रहना चाहिए था? 182 दिन। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 182 दिन की, 182 डेज और मोर। तो ये तो 213 दिन है। That's why he satisfied the basic condition. He is a resident in India. अब बात आगे चलते हैं, एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन इसलिए चेक करेंगे whether he is a ordinary resident or not ordinary resident. Yes or no? अब देखो, वो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि वो he has never been out of India, पिछले सालों में वो इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं है। जब इंडिया से बाहर गए ही नहीं, तो एडिशनल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बाय डिफॉल्ट। He has never been out of India. इंडिया पिछले सालों में वो इंडिया से बाहर कभी गया ही नहीं। That's why he is also satisfied the additional at both the additional condition. That's why he has become the ordinary resident. resident. ठीक है? Ordinary resident के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। Further, he has never been out of India in the past. Thus, he also has satisfied the both additional condition of section 6 of section C(a). Therefore, for the assessment year 2021 to 2022, Mr. Lalmohn Ganguly is a resident and ordinarily resident in India. ठीक है सर? समझ में आ गया? I hope it is clear to everybody. Yes, sir. It's clear. प्लीज नोट डाउन, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं या थोड़ा यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। Sir, what's the advantage of an ordinary resident over a normal resident? ऑर्डिनरी रेसिडेंट को बेटा टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ जगह पे
एग्जाम्पशंस हैं। आगे बात समझ में, हम उसको Yes, sir. डिस्कस करेंगे। मैं पूरा फॉर्मेट के थ्रू समझाऊंगा कि फॉरेन इनकम पे पूरा चार्ट है वो। वी आर गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। कीप पेशेंस, ग्रेजुअली हम मूव ऑन करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। एकदम डायरेक्टली जंप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। कर लिए क्वेश्चन ये नोट? अभिनव आप बताओ ये क्वेश्चन। अभिनव, Yes, sir. explain this question. Sir, he has been a resident of India because he has stayed for 213 days in the past, current previous year, and he's an ordinary resident because he satisfied the two conditions, two additional conditions of Section 6. That is, he has been a resident of India for 2 out of 10 years. 2 out of 10 years. Also, he has been in India for 730 days or more during the past 7 years. He has not been out of India before, so he's ordinary resident also. Very good, very nice. Give clap for him, all of you. Good. Vitarth, Abhilasha, Rishabh, Aryan. Yes, sir, Aman? it's clear. Yes, sir, it's Yes, sir. clear. It's clear. ऋषभ आप बताओ। Yes, sir. Sir, he has stayed for 230 days, which is more than 182 days. So he is a resident of India. Abhilasha, you tell. So he has satisfied the first condition out of the two basic conditions. Therefore, he is qualified as a resident of India, and additionally, he has satisfied the two conditions for the ordinary citizenship. So he is a resident plus an ordinary resident. Good. Aman. Aman, Aryan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, tell me. Sir, out of the two basic conditions, the person has stayed for more than 182 days in India. So he has completed the first condition, and that's why he's a resident of India. And for ordinary resident, there are two conditions, which both need to be fulfilled. And since he has never been out of India in the past 10 years, so he has fulfilled both the conditions. So he's an ordinary resident too. Yes, very nice. Good. Very good. Very good answer from Aryan also. You guys are doing a lot of hard work, I know. Okay. So, shall I discuss some more questions, or Sir, We we have a next class. So we have, yes, sir. you have the next class, right? Yes, sir. Okay, guys. We will meet you in the next class, and we are going to discuss some more numerical question on this topic. Thank you very much for attending the class very patiently and actively. Thank you all. God bless you all. Take care. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, beta. Thank you.